the environment, help the trees, because all of these papers come from tree. So try your best to download the apps on the internet and use them. Also, people come, they just pick this up and they keep in the house for many minutes. So to avoid that from happening, we are now making a small booklet. A booklet like this, which is waterproof. It lasts you longer. You carry it with it wherever you want and keep it in the house and read it. And also we have added some more things inside, like prosperity affirmation. We got two more very important things that we have. Also have the chakra chart, and also very important, we have got two more things. We got organ forgiveness, and we also have forgiveness for the cells in your body. Our cells are helping us so much, and knowingly or unknowingly, we are blaming our organs, our cells for not working, not knowing that we are the cause of our organs not working. The kind of thing that we do extreme sports, we hurt our knees, we hurt our ankles, we hurt our muscles, we hurt our heart. Next, the kind of food that we eat every day, the number of intake of sugar, intake of acidic and sour food, all that affects many part of our organs. Okay, so like that, we have to start asking forgiveness to the cells in our body. Okay, sir? Next, we have got one special one to ask forgiveness from the virus. Now, we live in a world of so much of microorganisms. The body that we have got so much of microorganisms outside. Inside, our body, immune system take care of that. Now, when another virus comes inside, it can be any form of virus, and there is no medical cure for virus, only prevention by vaccination. When the virus comes, it's your immune system that will have to fight it and keep your body safe from all of these things. So our body is constantly, so like that, when a virus comes to our body, we have to ask forgiveness from the virus. For reason you come in, please leave my body. And we have been very successfully helped many people who have got virus infection by asking forgiveness, and also eventually we will deactivate the virus, so the virus will leave the body and go. It's not actually virus, the energy of the virus will leave and go, and you will become better. So like that, because special one only found in this booklet for self-forgiveness, and also forgiveness of the virus and bacteria and protozoas that enter our body. So please get this book, help us to save a lot of paper, or download from the internet, and you can be able to read it yourself. Okay? Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. I hope you all will cooperate with us and try to find a way to save a lot of money period spent on reading affirmation. Next, ultimately, to save the tree. Don't come into workshops and just take them and let them lie on. Give to somebody else. They will benefit a lot. This affirmation has saved so many people's lives and bring families together, because forgiveness is the key for family harmony and for the soul of ours to be in harmony. Thank you, thank you, thank you. हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्ते. Namaste, Aradhana. Good evening. Good evening to all. नमस्ते आराधना. अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. अभी हमने देखा कि अफर्मेशन का जो बुकलेट है हिंदी में, वो बुकलेट है तो ये हम खरीद सकते हैं. और वो पेपर वगैरह सर बताए कि पेपर वगैरह जिससे हम पेड़ को सेव कर सकते हैं, जिसमें हम पैसे जो मतलब इन्वेस्ट करते हैं और लोग वेस्ट कर देते हैं. लिया अफर्मेशन, ले लिया और रख दिया और भूल गए कहाँ पे है वो पेपर. तो इस तरह से हम मदर अर्थ और मदर नेचर को हेल्प करने के लिए ऐप से भी अफर्मेशन पढ़ सकते हैं. और एक बार हमने बुकलेट खरीद लिया तो उस बुकलेट से हम अफर्मेशन पढ़ के अपने एनर्जीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं. तो हम आज अफर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं. हिंदी अफर्मेशन मैं बता रही हूँ. सब लोगों को हिंदी में ही हिंदी सीखने के लिए ही आते हैं. बाकी लोग तो भी इंग्लिश में सब जानते ही हैं, इंग्लिश का क्लास होते रहता है. तो मैं जितना सीखी हूँ और अफर्मेशन को जिस मेरे सोल के हिसाब से या मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं जितना समझी हूँ, मैं वो आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ. ठीक है. तो पहला है अपना, हम अफर्मेशन क्यों करना है. ये सर अफर्मेशन 10 साल, अभी का वीडियो में हमने देखा कि 10 साल पहले
ये अफर्मेशन सर लेकर आए 10 साल पहले, और शायद और पहले, क्योंकि वो 10 साल पहले 2 साल पहले का है जो 10 साल पहले दिखा, तो 12 साल तो ऐसे ही हो गए, शायद उससे भी पहले से लाए हैं। जब सर प्राणा वायलेट हीलिंग सिखाने के लिए गए तो उनको ये पता चला कि बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी या किसी के विचार, कोई कॉर्ड्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अफर्मेशन पढ़ना है। तो जब सर देखे कि हीलिंग तो हो रहा है, लेकिन अभी ये कर्मा बैलेंस करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए सर अफर्मेशन लेकर आए कि सभी पढ़ेंगे तो उनके कर्मा न्यूट्रलाइज होंगे, उनके खुद की एनर्जी अच्छी पॉजिटिव होने लगेगी, जिससे वो अपना सारा वो कर सकते हैं, कि मतलब आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम हमेशा पूछते रहते हैं ना कि हमें करना क्या है, क्या ऐसा कर सकते हैं, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए तो हमें हमारे राह में आगे बढ़ने के लिए भी ये अभिकथन हमारी मदद करता है कि हमें आगे और क्या करना है। अभी इतने दिन हो गए, अब आगे क्या करना है, तो अफर्मेशन पढ़ते हुए हम खुद की ऊर्जा को न्यूट्रल जब कर देते हैं तो हमें खुद ही समझ में आने लगता है कि हमें आगे क्या करना है। तो अफर्मेशन में पहला अफर्मेशन हम करते हैं खुद के लिए, फॉरगिव, अपने क्षमा अपने लिए। तो जब हम क्षमा अपने लिए पढ़ते हैं, उसमें पहला लाइन क्या है, हे पर ब्रह्म। पर ब्रह्म कौन है? पर ब्रह्म अगर सबके हिसाब से अलग अलग कोई बोलते हैं, अच्छा अभी कोई भी बता सकते हैं कि पर ब्रह्म उनके हिसाब से कौन है? जिन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। वो अभी पढ़ाना पहले टीनेज के उससे पीवीएच की वजह से हमें ये पता है। और कोई ऐसा कि उनके लिए पर ब्रह्मा कौन है? नहीं? तो हाँ, जिन्होंने ये मदर जी आईटी इट, आप का नाम ही इट है, तो फिर इट बताइए क्या है पर ब्रह्म? फादर मदर और क्रिएटर गॉड फादर, मदर और गॉड। इज गॉड कौन है? पर ब्रह्म की बात करें, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। जब हम मान लीजिए पीवीएच प्राणा वायलेट हीलिंग में नहीं थे, तभी कौन थे? तब क्या समझते थे कि पर ब्रह्म कौन है? सभी रूप को ही, मूर्ति वगैरह को ही बोलते थे कि वही पर ब्रह्म। ज्यादातर तभी तो मंदिर में पूजा करने के लिए हम लोग जाते हैं ना। मैं जाती थी, अभी भी जाना पड़ता है, क्योंकि वहां रुक नहीं सकते हम लोग खुद को, कि हम इस समाज में रह रहे हैं, तो हमें उन सब चीजों को भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। तो हमें, अगर हम, मेरी सोल को पता है कि रियल में पर ब्रह्म जिन्होंने ये पूरी सृष्टि को का ही निर्माण किया है, हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक बड़ी से बड़ी चीज, ये पूरी दुनिया जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस सब में एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, वो ऊर्जा क्या कर रही है, कहाँ से निर्माण हो रही है, ये किसी को भी पता नहीं। तो जिसने इस धरती की ये ऊर्जा बनाई है, जो इस धरती माँ को भी इस जगह पे पकड़ के रखी हुई है कि ये हवा में फ्लोट कर रहे, हम लोग क्या हवा में फ्लोट कर सकते? नहीं कर सकते। जब हम हवा में फ्लोट नहीं कर सकते, तो ये धरती कैसे एक ही ऑर्बिट पे, तो वो कहीं ना कहीं कोई ऊर्जा उन्हें संभाले हुए, कि वो नहीं, उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय शक्ति, जो हमें पकड़ के रखी हुई है कि हम धरती पे तो गिर नहीं गए। ये ऊर्जा हमें कहीं से तो मिल रही है, वही ऊर्जा देने वाले वो पर ब्रह्म।
हम उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, अपने शब्दों में शायद कभी भी नहीं कर सकते। हम उन्हें समझने की कोशिश कर सकते कि क्या हो सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें समझना ही मुश्किल है, क्योंकि हम जितना समझेंगे वो उससे कहीं और ज्यादा होते हैं। तो हम पहले अफर्मेशन में बुलाते हैं, उन सबको बुलाते हैं, हे पर ब्रह्म। फिर दिव्य पिता, अब दिव्य पिता और दिव्य माता, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, ये शरीर दिया, मैं जन्म ली हूँ तो मुझे ये शरीर मेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन हमारे जब वो पर ब्रह्म बने तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा डिवाइड किया ताकि लोगों के पास पहुंच सके। तो एक बनाए माता, एक पिता की ऊर्जा। हमें हर चीज माँ से हम जाके नहीं मांगते कि माँ, मम्मी मुझे ये करना है, माँ मुझे ऐसा करना है और ये करना है। हमें कभी मम्मी का प्यार, माँ का प्यार चाहिए होता है, कभी पिता का प्यार चाहिए होता है। हमें दोनों की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस धरती पे जब हम आए तो हमें कहाँ से क्या गाइडेंस, मतलब क्या मार्गदर्शन मिलना है, उसके लिए हम अपने माता या पिता, अगर हमें किसी तरह का ऐसा डिसीजन लेना है तो हमें पिता की ऊर्जा के, लेकिन हम अगर भावनाओं के उसमें जाते तो हम माता की ऊर्जा में वो करते कि माँ मुझे भावनाओं से बाहर निकलना है, तो तुम्हारी ऊर्जा की, तुम मुझे समझा सकती हो कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। मेरे जो जन्मदाता है, माता पिता है, वो हमें इस धरती पे रहना सिखा रहे हैं, हमें क्या करना अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, वो उनके हिसाब से सिखा रहे हैं, जो उनको किसी और ने सिखाया है। कभी उनके मम्मी पापा ने सिखाया, फिर उनके मम्मी पापा को भी उनके मम्मी पापा ने ही सिखाया होगा, लेकिन ऊर्जा के उसमें किसको, कौन है मम्मी पापा जो हमें सिखाते हैं। क्योंकि जब हम भटकते हैं, जब हम आंसू, कभी दुखी होते हैं तो रोते रहते, तो कुछ ऐसी शक्ति आती है जो हमें फील कराती है, नहीं आप, तुम ये करो तो देखो तुम्हें कैसा लगता है। वो ऊर्जा कहाँ से आ रही, वो हमें, जब हम कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम जब भटकने लगते हैं तो हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन का, वो किसी भी रूप में आके आपको मिलते हैं, बस हमें पहचानने की देरी होती है कि हम पहचान पा रहे हैं उनको या नहीं पहचान पा रहे। अगर हम नहीं पहचान पा रहे तो क्या करेंगे, लेकिन अगर हम पहचान पा रहे हैं तो हम उनके वाइब्रेशन, हम उनकी ऊर्जाओं को पहचान पा रहे। तो दिव्य पिता और दिव्य माता, मैंने ये इस पे एक मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था, वो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैं बहुत दुखी थी, मतलब बहुत रोने जैसा थी। तो जब मैं रोने जैसा हुई, मैं बाहर गई, मैं रोने के उसमें थी कि मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी तो कुछ वो ही नहीं है। एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा जो होता ना, वो मेरे पास आई, मैं ऐसे ही बैठ गई दुखी होके कि अब तो पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। वो बिल्ली आके मेरे ऐसे पैरों के पास आके बैठ गई, मेरे ऊपर पैर रख के। तो ये ऐसे नहीं आता है। और जब मैंने उसके एक मतलब चेहरे का वो देखा ना, जैसे लगा मुझे कोई नेचर बीइंग्स या कुछ ऐसे आके मुझे बता रहे कि संभालो, ये ऐसा नहीं है कि आप दुखी होके अपने आप को हर्ट कर रहे हो, नहीं, दुखी मत हो, ये दुनिया ऐसी है, आपको आगे बढ़ना है। तो हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हमें अपने लिए अफर्मेशन करना है। अब अभिकथन जब हम पढ़ते हैं तो हम कोई बहुत सारी ऐसी ऊर्जाओं को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं जो हमारे लिए अच्छा ही नहीं, और हमें भी नहीं पता है कि वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो हम फिर बुलाते हैं अपने दिव्य पिता और दिव्य माता। उसके बाद मेरी उच्चतम आत्मा, अभी मैं ये शरीर हूँ, इसके अंदर एक आत्मा है। आत्मा क्या है, तो वो प्राण शक्ति है जो मुझे इस शरीर में चलना है, बोलना है, मैं जो बोल रही हूँ वो प्राण है। अगर मुझे
मेरी आत्मा को एक छोटा सा अंश जो मुझे सब मूवमेंट करने के लिए इजाजत देती है। प्राण गई, मैं गई। तो मेरी उच्चतम आत्मा जो मुझसे जुड़ी है, जो जिसमें मेरा कर्मों का मैं न जाने कितने जन्मों से इस धरती पे आती रही हूँ, कुछ कर रहा होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो भी किया उसका कर्म को संतुलित करने के लिए मैंने कुछ अच्छा किया, तभी मुझे ये पीवीएच मेरे हाथ में आया कि मैं आज कुछ खुद को सीख रही हूँ, खुद सीख रही हूँ और किसी को सिखा पा रही हूँ। इतना अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकती, और जब मैं बताऊंगी तभी मुझे ज्ञान भी होगा। और आप लोग जो आ रहे हो वो ईश्वर की ही इच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं। तो मेरी उच्चतम आत्मा को मेरे इस जन्म में कर्मों को संतुलित करने के लिए मैं उन्हें भी याद करती हूँ। फिर मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अब मैं किसी रास्ते पे आगे जा रही हूँ, मुझे रास्ता दिख रहा है, अगर वहां पे 4 रास्ते आ गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से रास्ते में जाना है। तो वो जो एक कभी कभी ऐसा अंदर से आता ना, अरे ये रास्ते पे चलो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो हमारे मार्गदर्शक होते। कोई भी ऐसा रास्ता, सिर्फ ये छोटी सी चीज को अगर थोड़ा बड़ा में देखेंगे तो वो देखेगा कहीं पे भी आप जा सकते हो। तो जब हमें कोई रास्ता दिखाने वाले होते तो वो हमारे मार्गदर्शक है। फिर हम बुलाते हैं समस्त आध्यात्मिक मार्गदर्शकों। हमें अच्छाई में अपने कर्मों को सही करने के लिए आगे बढ़ना है, तो हम अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को बुलाते हैं, याद करते हैं। अब आध्यात्मिक तो हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उस पे रास्ते पे आगे बढ़ना है। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो हमें वो रास्ता दिखाने वाला भी कोई चाहिए। तो वो दिखाने के लिए हम कौन, हमारे ही सोल को कोई रास्ता बता रहे कि ये इस तरफ से। कभी कभी हमारा मन कहता है कि मन नहीं, हाँ मन ही समझ लो कि ये रास्ते पे चलो तुम सही रहेगा। वो आप उस रास्ते पे जब जाने लगते हो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वहां पे जब हमारा कंफ्यूजन आता है तो खुद को शांत करके जब हम सोचते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता हे हे ईश्वर मुझे कौन सा रास्ता पे जाना चाहिए, तो अपने आप आपके कदम उस रास्ते पे चले जाते हैं जहां आपके लिए कुछ है जो आपको जानना है। हमारे हर एक मोड़ पे एक एक अध्याय है। जैसे ही मेरा एक अध्याय एक चैप्टर, जैसे हम स्कूल क्लास 1 पास करेंगे तब हम क्लास 2 पे जाएंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, उस लेसन से, उस अध्याय से हमने क्या सीखा वो सीख के फिर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आगे बढ़े तो उसके बाद हम बुलाते हैं, वो कौन दिखाते हैं, वो भी कोई मार्गदर्शक जिनको हम नहीं, इन आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। इन आंखों को और पता नहीं कब देखा लेकिन इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतना आसान नहीं है, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो फिर बोलते हैं मेरे समस्त आध्यात्मिक मार्गदर्शकों व गुरुजनों, जितने भी मार्गदर्शक मतलब जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, जो गुरु हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ नॉलेज इस धरती पे हमारे लिए छोड़ा है। गुरु सिर्फ गुरु ही नहीं है कि हाँ मतलब मैं इसको फॉलो करूँ यही गुरु नहीं। हम एक बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, एक कीट से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसका पेशेंस लेवल कि वो जब वो कीट आगे बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी शांति, वो जब वो कीट के चारों तरफ बटरफ्लाई बनने के लिए, तितली बनने के लिए ऊपर से वो कवर जब लगता है वो बहुत दर्दनाक होता है। उसको क्या बोलते हैं, हाँ व्हाइट कलर का, उसका कुकून में जब रहता है, जब वो कीट कुकून के अंदर जाने लगता है तो उसको बाहर आने के लिए जो पीड़ा होती है वो भी वो सीखना शुरू करता है ना।
एक इस पे भी एक कहानी याद आ गई मुझे कि एक बार एक ऋषि मतलब एक आदमी को एक तितली अपने कुकून पोस्ट से बोलते बाहर उसको, निकलते। पोस्ट बोलते उसको, पोस्ट। अच्छा, वो जो मतलब आप समझ रहे हो कि वो तितली हाँ हाँ एक कुकून में हाँ रहती है, तो वो कुकून से मैं वो कहानी एक आपको और सुना रही हूँ। हाँ जब वो कुकून में थी तो वो कुकून से बाहर निकल रही थी, तो एक रास्ते राही ऐसे ही देखा, अरे इसको बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कुकून को कट कर देता हूँ ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। तो उसने क्या किया, वो कुकून को देखा और धीरे से उस कुकून को धीरे धीरे खोल दिया। उसने वो कुकून को खोल दिया, वो तितली तो बन के निकली लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई, वो अपने जीवन को में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, जितना उसको जीना था वो उतना भी उड़ भी नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उसकी मदद करने की सोची, पर उसको वो कुकून से निकलने के लिए जो मेहनत करना था वो उसने किया ही नहीं। तो उसे पता ही नहीं है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना। हम अगर हमारे साथ कुछ भी कठिन, कोई भी कठिन ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं अब तो फंस गई, मुझे अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो समझ लेना कि आपको भगवान कुछ सिखाने के लिए ही वैसा सिचुएशन दिए हैं। तो उस अगर वो बटरफ्लाई मतलब वो तितली उस कोकून में से खुद से मेहनत से बाहर निकलती तो उसकी जिंदगी और होती, लेकिन किसी और ने उसकी मदद करके उसके कोकून को खोल दिया। अब वो कोकून से बाहर तो निकल गई पर वो जिंदा ही नहीं रह पाई, क्योंकि उसने जीवन को कैसे करना है, आगे बढ़ना है, वो सीख ही नहीं पाई, तो वो मेहनत ही नहीं कर पाई। इसके लिए वो वो मतलब ये कहानी ऐसे में मुझे याद आई कि हमें जो भी सिचुएशन आता है उससे हम कैसे बाहर निकलने के लिए हमें खुद कैसे मेहनत करना है। तो उसके बाद हम बुलाते हैं हमारे आध्यात्मिक सहायक को, समस्त आध्यात्मिक सहायक को, फिर समस्त उपचारक देवदूत। आध्यात्मिक सहायक को मतलब जो भी ईश्वर के तरफ जाने से हमें रास्ता दिखाते हैं, वो सहायता करते हैं कि तुम इस तरह से नहीं, इस तरह से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, इस तरह से अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, आपको ये करना है। तो वो जो हमारे सहायक होते हैं वो सभी हमें सिखाने के लिए आते हैं। हम क्या सीख रहे हैं वो हमारे ऊपर है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम सीखेंगे, हम अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं सीखेंगे। अगर हमें किसी ने खाना परोस के दे दिया तो हमें खाना कैसे बनाना है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें खाना बनाने के लिए भी वो मेहनत को देखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो अफर में आध्यात्मिक ये जो अपना अभिकथन है, ये इसके लिए पढ़ना है। हमें परोस के खाना का पूरा रेसिपी दिया हुआ है, हमें उसको पढ़ के अपने कर्मों को संतुलित करना है, न्यूट्रल करना है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए मदद करे। हमारे जर्नी में हमारा जो इस धरती पे हम आए हैं तो हमारे लिए कुछ काम भगवान ने सोचा होगा कि ये इंसान है, इसको आगे बढ़ने के लिए ऐसा काम करना है, ये काम ये कर लेगी, इसका जर्नी खत्म, आगे की लाइफ इसके लिए मैं सोच के रखना हूँ। उनका जो डिसीजन होता है ना, हमें कैसे भी करके उसमें चलना ही पड़ता है। अब हमारा है कि हम किस रास्ते को चुने। तो हमारे पास ये जो अच्छा सा अभिकथन है जो हमें आगे बढ़ने के लिए ये मदद कर रहा है, वो इसके लिए तो हमने पहले सबको बुलाया। महान कर्म मंडल, महान कर्म मंडल क्या है? महान कर्म मंडल वो है कि हाँ, महान कर्म मंडल वो है जिसमें हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा, हमने जब से जन्म लिया है तब से लेके आज तक हमने क्या कर्म किए हैं, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। अगर हमारे साथ अच्छे कर्म होते हैं तो हमारे साथ बुरे कर्म भी हमारे साथ ही होते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। उनके पास भले ही हमारे पास लिखा हुआ या हम भूल जाए, हमें याद नहीं हो, लेकिन उनके पास हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा है। हम
अगर किसी चीज को छुपा रहे हैं तो वो उनको पता है, हम अगर किसी चीज को बता रहे हैं तो भी वो उनको पता है। मेरे बोलने से ही मेरे बातें सच्ची हो जाए, नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो एक ऊर्जा के रूप में है। मैंने क्या अपने लिए चाहा वो मैं बोल ली, अब बोली तो वो यूनिवर्स में है, इस धरती पे है, उस ऊर्जा भगवान के पास पहुंच गई है कि ये मेरे बच्चे को ये चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है वो तो उनको डिसाइड करने देते हैं। क्योंकि जब तक वो उनको पता है, वो ईश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे मार्ग में कौन सी ऐसी रुकावटें आई, आने पे हम वो चीज को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वो रुकावटें आएंगी और उसको पार करना ही है, तो आगे बढ़ना है। तो हम अफर्मेशन, ये अभिकथन का यहाँ महान कर्म मंडल तक समझ लिए। अगर यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछिए, फिर मैं आगे का वो बताती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ पूछना है किसी को? आप सब कोई प्राणा वायलेट हीलिंग फॉलो करते हैं, पढ़े तो होंगे ही ये अभिकथन। अगर अभिकथन में पहले ऊपर के सारे उसमें से किसी भी उसमें आपको कुछ भी पूछना है तो पूछते। हम ये क्यों बोलते हैं? तो हम उन्हें अपने दिल से याद करके उन्हें साक्षी बनाकर। किसी को कुछ यहाँ तक पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। नहीं, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं, चलो अच्छा, तब तो मैं अच्छे से सिखा रही हूँ, थैंक यू। चल, मैं आगे है, मैं वह हूँ जो मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ना ये शरीर हूँ ना ये मन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन मेरी आत्मा ये मन भी है, मन में भी है, और इस शरीर को भी, अगर मेरे पास ये शरीर नहीं होगी तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगी। मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे अपने कर्मों को संतुलित करने के लिए ये शरीर चाहिए। तो मेरा ये शरीर, तो अब बीच में जो ये मन है जो बहुत ज्यादा भटकता रहता है, बहुत सारी सवाल लेके आता है, बहुत सारे इमेजिनेशन को लेकर आता है, अरे ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता। वो मन को हम कैसे बात, मतलब समझे कि ये मेरा मन है या मेरी आत्मा है। हम अपने सारे बागडोर को अपने मन को संभालने दे चुके होते हैं। इसके लिए हम, अरे मुझे इसने ये कहा था, मुझे ऐसे ही करना है। नहीं, हम खुद को, अपनी आत्मा को डोर दे के देखिए। जब वो डोर हमारे आत्मा के साथ जुड़ेगी तो वो डोर से हमें क्या करना है, जो हमारी सोल जर्नी के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, वो काम हम करना शुरू करते हैं। तो मैं वह हूँ जो मैं हूँ, मैं अपनी शरीर मन और के साथ एक वो आत्मा हूँ जिसको मुझे आगे लेके जाएगा। मैं इस मन में भटकने की चाहत नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा। ठीक है, जो है वो, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा, पर मुझे आगे बढ़ना है। जो हो रहा है एक्सेप्ट, जो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट, जो आगे बढ़ रहे हैं एक्सेप्ट, जो अगर कहीं रुके हैं तो भी वो एक्सेप्ट करिए, क्योंकि अगर मैं रुकी हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उससे कुछ सीखना है, तभी मैं वहां पे रुकी हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ चुकी होती। फिर मैं विनम्रता पूर्वक दिव्य क्षमा का आह्वान करती हूँ। मैं ऐसे भी क्षमा का आह्वान करती हूँ, बोलो तो नहीं चलेगा ना। विनम्रता, अपने आप को एकदम विनम्र रखिए, नम्र रखें। जितना आप सहज और प्रेम भाव से किसी बात को एक्सेप्ट करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत आगे बढ़ने का रास्ता बनेगी।